अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक नियाजी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है 13 इयर्स नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है 1300। हाँ 1300 ईयर ओल्ड ट्रेडिशनल हिमाचल धाम 100% प्योर वेजिटेरियन। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। लेट्स प्ले। पता नहीं, देखते हैं। और धाम की सबसे खास बात यह है कि ये बिना प्याज बिना लहसुन के तैयार किया जाता है। और भाई यहाँ पे किचन में खड़े होना इतना बहुत मुश्किल धुआं है। है। तो टोटल कितनी आइटम जाती है? हमारी 9 आइटम जाती है। हिमाचल के सारे डिस्ट्रिक्ट्स की धाम अलग होती है। ये कांगड़ी धाम है, तो इसमें आपको तेली माँ देखने को मिलेंगे, पीले चने देखने को मिलेंगे, मदरा होगा। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. मजीद भी दे रहे हैं। सब एक साथ दे रहे हैं। चावल तो कितने कम में यार। और ले लो बाद में जब चाहिए तो। नहीं मतलब बिल्कुल है ना। सबका अलग अलग टेस्ट होना चाहिए। चावलों के ऊपर डाल दिया उन्होंने। रोटी भी होगी। रोटी है होगी फिर तो सही है, रोटी नहीं है। देखिए, अगर आप हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा आए और नहीं। हिमाचल प्रदेश में आके अगर आपने धाम नहीं खाया तो फिर क्या खा आप हिमाचल प्रदेश आए? भाई धाम एक ऐसी चीज़ है ना जो यहाँ पे जो फेस्टिविटीज़ होती हैं, जो ओकेजन्स होती हैं, जैसे वेडिंग्स होती है, उसके अंदर हाँ। धाम होना मस्ट है। और धाम की सबसे खास बात यह है कि ये बिना प्याज बिना लहसुन के तैयार किया जाता है। और जितनी भी आप सब्जियां यहाँ पे देख रहे हैं ना, वो सारी की सारी इतनी ज़्यादा सात्विक तरीके से बनाई जाती है कि अगर आप एक बार खाएं तो सच बता रहा हूँ, इसका जायका और स्वाद बिल्कुल भी ना भूल पाएँ। अब सबसे ये बात ये है खास कि यहाँ पे ना कॉन्टीन्यूसली जो आपकी मील है, यानी कि जो आपकी सब्जियां हैं वो रिफ़िल होती है एक एक करके। पहले आपको छोले मिलेंगे, फिर राजमा मिलेंगे, फिर अलग अलग तरीके की 4 दालें मिलेंगी, सेतु बड़ी मिलेगी, पालक वाली कड़ी मिलेगी, मीठे चावल मिलेंगे। ये सारी आइटम्स आपको मिलती है। आपको एक एक करके आइटम खानी होती है। क्योंकि मैं चाहता था कि सारी आइटम्स मैं आपको दिखाऊँ, तो इसलिए मैं पत्ते में जो है वो खाना आप स्टार्ट करूँगा।
तो मेरे साथ अमन है इधर, और ये मुझे थोड़ा सा बता भी रहा था धाम के बारे में कि बहुत खास एक जायका है जो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। भाई क्या खास है, ज़रा बताओ धाम के बारे में। तो हिमाचल के सारे डिस्ट्रिक्ट्स की धाम अलग होती है। ये कांगड़ी धाम है, तो इसमें आपको तेली माँ देखने को मिलेंगे, पीले चने देखने को मिलेंगे, मथुरा होगा, ये जो आलू और ये छोले हैं, कड़ी होगी, राजमा होते हैं, सेपू बड़ी होती है, और दालें भी होती है। लास्ट में मीठे चावल मिलते हैं खाने के, मीठा के लिए। हाँ जी, मीठे चावल। क्या बात है। और सबसे बढ़िया बात है, ट्रेडिशनली पत्ते पे ही इसको सर्व किया जाता है, और यही मेरे ख्याल से गिना चुना एक जो जगह है, टाकरी जिसको बोलते हैं, जहाँ पे आपको ये मील जो है वो सर्व की जाती है। आइए अब हम मील स्टार्ट करते हैं और फिर बताते हैं आपको कि क्यों ये इतनी लाजवाब जायका है। पूरी निकाल के खाते हैं क्यों? मैंने काफी लोगों को नोट पहले मैं एक एक करके सारी की सारी डिशेस का जायका लूंगा, निकाल रहा है, फिर आपको एक साथ बताऊंगा कि क्यों ये इतनी खास मील है। बहुत बहुत अमेजिंग ये जायका है। वो तो महान है भाई। देखिए, आप सेपू बड़ी खाएं, आप दाल खाएं, आप चने खाएं, आप राजमा खाएं, या फिर आप ये खट्टे वाले जो चने हैं वो खाएं, या कड़ी खाएं, कुछ भी आप खाएं, हर एक चीज़ का जायका इतना ट्रेडिशनल है, इतना ऑथेंटिक है, इतना लाजवाब है कि ये आप एक बार जब भी हिमाचल आए ना, मेरी रिकमेंडेशन पे धाम जरूर खाइएगा। बाकी सारी चीज़ें तो आपको हर जगह मिल जाएंगी, बट ये आपको ट्रेडिशनली हिमाचल में ही मिलता है, और ये ऐसा जायका है जो आप मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहोगे। आपने देखा कैसे लोग एंजॉय करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़े, हर कोई आके यहाँ पे इस मील को एंजॉय करता है और ये जायका खाता है। तो जब भी आप अगली बार हिमाचल आ रहे हैं, जरूर धाम को अपने लिस्ट में इंक्लूड करिएगा, अगर आप मेरी तरह खाने के शौकीन हो तो। बहुत लाजवाब जायका भाई, सच में मजा आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देख के मजा आया, और अगर आया तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना, और ऐसी बेहतरीन रिकमेंडेशन के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर देना। बहुत उम्दा जायका है। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो मेरा चैनल का नाम है यूट्यूब स्वाद ऑफिशियल, वहाँ पे भी जाके फॉलो करना, और अगर भाई के चैनल को फॉलो करना है तो किसको फॉलो करना है? धर्मशाला लोकल इंस्टाग्राम पे, लिंक मैं आपको दोनों की दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ये कहाँ मिलती है उसका भी एड्रेस आपको बता दूंगा। आइएगा, खाइएगा और बताइएगा आपको मेरी रिकमेंडेशन। बोला भाई का चैनल अगर करना तो कैसी लगी। आई एम श्योर आप सोचते होंगे कि ये हिमाचली धाम दरअसल क्या होता है, कैसे उसे तैयार किया जाता है, कैसे उसे खाया जाता है। तो शेफ है हमारे साथ, शेफ पंकज हैं, जो कि हिमाचल से हैं। हिमाचल से। तो ये हमें लेके जा रहे हैं इधर नेटिव किचन में, जहाँ पे पुराने टाइप के बर्तन, कैसे उन बर्तनों में खाना बनाया जाता था, कैसे वो तैयार किया जाता है, वो सब कुछ आज हमें ये बताएंगे। तो इनके साथ हम किचन जा रहे हैं, और ये हमें सारी की सारी जो धाम से रिलेटेड चीजें है ना, जो मैं इनसे पूछूंगा, वो आपको बताएंगे। तो अगर आपको नहीं पता हिमाचली धाम के बारे में तो देखना, और अगर पता भी है तो हो सकता है सीख जाओ। चलते शेफ। शेफ बताइए धाम क्या होता है, कब कब उसे बनाया जाता है, और इसमें क्या कौन सी सब्जियां होती है? यहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है तो धाम, जैसे हमारे यहाँ पे फंक्शन वगैरह, शादी में धाम का। तो धाम में मैंने सुना लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता जी? नहीं होता। अच्छा, कौन कौन सी आइटम बनती है जी धाम में? धाम में बनती है नेक्स्ट जैसे कांगड़ा की धाम है, ये अलग होगी, आपकी मंडी की अलग होगी, चंबा की अलग होगी, बिलासपुर की अलग होगी, पर हमारे यहाँ पे जो है ये हिमाचली धाम, कांगड़ी धाम नहीं। अच्छा, यहाँ पे सारा मिक्स है, शिमला का भी, कुल्लू का भी, इधर उधर सबका। अब अपनी पालक से बढ़िया आपने भी ट्राई की, हाँ जी, वो मंडी की हमारी। हाँ जी। राजमा हमारे चंबा के आगे, धूमी दाल जो खाई देसी घी वाली आपने, जो बिलासपुर की है, बहुत फेमस दाल है। हाँ, धूमी दाल। हाँ जी। तो इसमें डिफरेंट प्रकार। और मैंने ना एक एंड में वो खाए थे, चने खाए थे जो खट्टे थे। हाँ, रंठा अपना क्या नाम, डेट्स थे। वो भी अपने हमीरपुर। तो टोटल कितनी आइटम जाती है? हमारी 9 आइटम जाती है। 10 में जो ग्रीन राइस है, उसके बाद स्वीट राइस है। और भाई यहाँ पे किचन में खड़े होना इतना मुश्किल है। यहाँ पे आप देखेंगे कि धाम जो है वो तैयार हो रहा है, और आप ये भी देखेंगे कि कैसे ट्रेडिशनल तरीके से आज भी यहाँ पे जो धाम है उसको बनाया जाता है। थोड़ा बाहर चलते हैं, और बाहर चल के शेफ से थोड़ी बातें और करते हैं। तो शेफ आ गए हमारे साथ, और शेफ ने आपको बताया कि हमारी टोटल 10 आइटम होती है, और ये जो पत्ते पे करते हैं, साल का पत्ता होता है, ये पत्ता जो होता है यहाँ का लोकल पत्ता होता है, और उसी में ही बनाते हैं। उसी में। तो एक बार आप आइटम में बताएंगे कौन कौन सी होती है? आइटम में हमारे सबसे पहले हमारा आते हैं आलू चने का मदरा। आलू चने का मदरा आता है। वो दूसरा आते हैं राजमा आ जाते हैं। राजमा आ गए, राजमा चंबा के राजमा। चंबा के, हाँ जी। और उसके बाद पालक से बड़ी जो हमारे हमीरपुर की है, हाँ जी, मंडी की, हाँ जी, बड़ी मंडी की बहुत। हाँ जी। उसके बाद आ जाती है हमारे पालक
कुछ मूंग है। दाल की रोटी वो कांगड़ा की, उसमें स्मोकी फ्लेवर होता है मस्टर्ड ऑयल देगा। हाँ जो भी खाना बनेगा दाल में हाँ। टोटल ही मस्टर्ड ऑयल देगा। अच्छा, मस्टर्ड ऑयल। जी, जितना हो सके उतना मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड और ऑयल इसकी क्या कीमत रहती है? इसमें इसकी कीमत रहती है 350। 350 में एक बंदा खा सकता है? एक बंदा आराम से, और जितना मर्जी खा सकता है। जितना अनलिमिटेड। तो जितना भाई 350 रुपये आपको खर्चने होते हैं, अनलिमिटेड आप धाम खा सकते हैं। 10 से ज़्यादा आइटम होती है। और जैसे कि मैंने कहा हिमाचल आए हैं, हिमाचल में आके अगर आपने धाम नहीं खाया तो फिर आप क्या खा मतलब समझ हिमाचल लो आए? तो कोई जरूर वो आइएगा, है। जरूर इसको ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी रिकमेंडेशन कैसी लगी। वन ऑफ मंदिर द कोई बेस्ट थिंग्स टू हैव व्हेन यू आर इन भंडारा। हिमाचल। लंगर। जी जनाब। ये था धाम। अच्छा, मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था ये जो भंडारे होते हैं उस टाइप का मुझे लग रहा था। मैं समझी कि वो है। मैंने कहा ये सिटिंग एरिया इतना अच्छा है और मतलब वो भी रखी हुई है पिक्चर से। लेकिन अगर वो होता ना प्रसाद होता, वैसे तो एक तरह से जिस तरीके से वो ट्रेडिशन है और प्रसाद की तौर पे ही बना रहा। और बाकायदा मुझे एक चीज़ और अच्छी लगती है कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट है या इस तरह का काम करते हैं, जो भी सुबह बनता है ना पहले प्रसाद चढ़ाते हैं। मतलब ये बहुत सारी तो हमने लास्ट वीडियो देखी थी जो दादाजी पकाए थे, तो सारा जाता है पहले छत पे, पहले भोग चढ़ता है, उसके बाद फिर वो छत से नीचे लेकर आते हैं, फिर वो सेल करते हैं। तो मतलब ये भी अपने आप में बड़ी खूबसूरत बात है कि पहले खाने से पहले पहले भोग चढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर आप आराम से अपना चढ़ाना। रास्ते पे खाने का और हाथ से खाने का एक अपना ही मेरे ख्याल में एक सिस्टम होता है। मतलब अपना ही एक नया एक्सपीरियंस होता है, एक नई चीज़ होती है। और ज़मीन पे बैठ के समझो कुशन वुशन लगाए हुए हैं, बड़ी इज्जत से हल्की पल्टी मार के आराम से बैठ के हमने कई दफ़ा पूछा है कि जैसे ये पत्ते होते हैं, ये वन टाइम यूज होता है। कमेंट आया मतलब पत्ते किसके हैं, ये कितना कहाँ से आते हैं? केले के पत्ते आए थे, नहीं, ये और पत्ते भी थे, केले के भी। डिस्पोजेबल आए थे। साउथ इंडिया में ना केले के पत्ते यूज होते हैं। हर इलाके में जो चीज़ उगती है ना, तो उसी का पत्ता ही यूज कर रहे होंगे। अब देखिए पत्ता भी यूँ समझ लो, पत्ता तो वो एक तरह से खाद बन जाता है। पत्ता तो यूँ समझ लो कि मट्टी के साथ मट्टी हो जाता है और उस मट्टी को खूबसूरत करता है और उस मट्टी में हरियाली लेके आता है। तो अगर इसी की जगह प्लास्टिक यूज हो तो प्लास्टिक डिस्पोजेबल यूज हो, डिस्पोजेबल। वो गंदगी फैलाती है पूरे शहर में। और ये देखें कि बहुत सदियों पहले से इंडिया में इतने ज़हीन लोग हैं, ये इतने ज़हीन लोग थे, ऋषि मुनि आचार्य, कि वो वहीं से सदियों पुराना ट्रेडिशन है। आज दुनिया कह रही है पत्ते पे खाना चाहिए या ऐसी चीज़ पे खाना चाहिए जो वन टाइम यूज़ हो, एक ही दफ़ा यूज़ हो या भले 10 दफ़ा यूज़ हो, लेकिन वो माहौल इन्वायरमेंट का मसला ना हो, इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है। हरियाली आप प्लास्टिक खराब इतना खतरनाक है माहौल के लिए। माहौल के लिए छोड़ो, अपने लिए बहुत हार्मफुल उसमें केमिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। वो मतलब आपके इंटरनल बॉडी में पानी पियो प्लास्टिक की बहुत केमिकल से बना है, तो वो आपके लिए हार्मफुल बहुत होता है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं लोगों को कब अवेयरनेस आएगी। लेकिन अच्छी बात है, चलो यार इंडिया में तो आ गई। मैं कहती हूँ चलो यार दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन कुछ तो सीखना चाहिए, कुछ माहौल के सीखना चाहिए। बहुत कुछ, अब बहुत कुछ को छोड़ो, कुछ तो सीखना चाहिए कि मतलब एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा ट्रेन और उसके अलावा बहुत कुछ है। फूड है, हाँ, बहुत कुछ फूड है और एजुकेशन है, एजुकेशन, मतलब बोलने पे तो बहुत कुछ है। पेज है, हाँ बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। सीखना कितने है, इंसानियत है, सेवा है, बहुत कुछ सीखना चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ सीखना चाहिए, उसके बाद बहुत कुछ तो सीखते रहेंगे। लेकिन पता नहीं कब सीखेंगे। लेकिन बड़ा अच्छा लगा। अच्छा चावल कम नहीं लग रहे थे आपको? जनी ये थे उन्होंने बाद में ही नहीं, वैसे मतलब फिर भी जो दिए थे दूसरे के पास भी चावल, या तो अपनी मर्जी से जितने कम डलवाओ। अपने देखो, अब हाथ से सालन खा रहे हो आप। पालन नहीं, अब कुछ लोगों का होता है ना, बिल्कुल लिस्ट पिस करके खाते हैं। अब जैसे मेरा है ना कि मैं पुलाव में ना रायता बहुत भर भर के खाती हूँ, मतलब मुझे रायता पेट में मजा आता है, स्पून से होता है। फिर मैं रायते में बिल्कुल ऐसा लगता है चावल पुलाव रायते में नहीं, ऐसा लगता है रायता पुलाव में है। तो इस तरह से मतलब खाते हैं, कुछ आदत होती है। तो कुछ लोग होते हैं जो सब्जी में चावल नहीं, सालन में सब चावल धो के खाते हैं। तो इस तरह से अब नेचर है सबकी अपनी अपनी। तो यही था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कोई भंडारा है, लेकिन ये धाम है। लेकिन सही है यार, 350 में पेट भर के खाना खाओ, चाहे नीचे से, और आप से पहले हाथ धुलाएंगे, इतनी इज्जत करेंगे, और क्या चाहिए आपको, स्पून से बैठ के कंफर्टेबल सीट है। हाथ धो के नहीं आने आपने। आओ, सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हैं, मसला नहीं। पानी की बोतल दी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हर किसी को पानी की बोतल दी, वो अच्छा लगा। साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन, सफाई का ख्याल, सब कुछ अच्छा। किचन दिखाया, किचन भी साफ सुथरा था, बहुत अच्छा लगा देखकर। लेकिन जाना हिमाचल गए तो ये नहीं खाया धाम तो कुछ नहीं खाया, तो हिमाचल जाके जरूर ट्राई करना तो इसको। और दोबारा किसी और के साथ आपसे मिला था, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।